SBA Publications. Hello, my dear students. How are you all? I hope that you all are very well. So, dear students, today we will learn a new topic, and that is know more about our body. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में. Let's start with me. We will learn today the important organs of the human body. कि हमारी human body में कौन कौन से important organs हैं. Next is group the organs into organ systems. हम आज organs को group में बनाना सीखेंगे, यानी कि group करके उनके organ system कौन कौन से हैं. Next है explain the work of each organ system. हर एक organ system का work क्या होता है, क्या functioning है. Last one is explain that cells are the smallest part of living things. आज हम cells के बारे में भी पढ़ेंगे कि cells क्या होती हैं. Okay, let's start. Human body is a wonderful machine with different body parts. As you know that our body is also a machine. Like एक कार होती है, कार को फ्यूल की नीड है. जब आप कार में पेट्रोल डलवाते हुए जब भी चलती है, ऐसे ही we are also a machine. हमें किसकी नीड होती है? हमें फूड की नीड होती है. फूड हमारा फ्यूल होता है. Now, different parts of our body carry out different functions. Our body is made up of billions of tiny cells. जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बनती है. बहुत सारी billions of cells we have in our body. The group of cells which perform a specific work is called a tissue. Group of cells को हम क्या बोलते हैं? Group of cells is known as tissue. Tissue join together to make an organ. और जो tissues हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? Organ. यानी कि कई सारे tissues का ग्रुप मिलके एक organ बनाता है. Okay? Now we will learn organ system. यानी कि organs का group. Some organs work together in a group to do a specific job. Such a group is called an organ system. तो जो group organs का group मिलके एक special functioning करता है, that is known as organ system. Okay? The various organ systems of our body helps us to grow and survive. Our body has 8 important organ systems. How many organ systems our body have? Our body have 8 important organ systems. The first one is skeletal system. Skeletal system. Skeletal मतलब this is a skeleton, यानी कि हमारी हड्डियों का पूरा structure. The skeletal system is made up of 206 bones. Our body has 206 bones. जो पूरा skeletal system है वो 206 bones से मिलकर बनता है. A complete set of bones is referred to as skeleton. यानी कि जो हमारी bones हैं उनका complete set, that is known as skeleton. Like this is a picture of skeleton. यानी कि हमारी हड्डियों का पूरा एक structure. Okay? Bones connect with each other at joints. बच्चों joints क्या होते हैं? मैं अपने हाथ को यहाँ से move कर पा रही हूँ because there is a joint. लेकिन क्या मैं अपने हैंड को यहाँ से मूव कर सकती हूँ बीच में से? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई जॉइंट ही नहीं है. मैं इसको ऐसे मूव कर सकती हूँ बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ जॉइंट. ओके, सो बोन्स गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द शेप टू अ ह्यूमन बॉडी. ओके, बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, उनको भी प्रोटेक्ट कौन करता है? उनको भी प्रोटेक्ट हमारा स्केलेटन, यानी कि स्केलेटल सिस्टम ही उसको भी सपोर्ट करता है. ओके, नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. सो डियर स्टूडेंट्स, मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर सिस्टम हमारी मसल्स से बनता है. The muscular system is made up of muscles. There are more than 650
650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में 650 से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं. मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स. जनरली हमारी जो मसल्स हैं वो हमारी बोन्स से अटैच्ड होती हैं. ओके, ये हमारा है मस्कुलर सिस्टम. इसमें ये क्या है, मसल्स से मिलकर बना है. नाउ these muscles helps us to move about and do different kinds of work. मसल्स ही हैं जो हमें वर्क करने में हेल्प करती हैं. बिना मसल्स के हम वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी मूव किसकी वजह से करती है, मसल्स एंड बोन्स. ओके, मसल्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग. जो पर्सन हेल्दी है उसकी मसल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. सो डियर स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे खाना खाने से और पूरा डाइजेशन कि हमारा खाना पेट में कैसे डाइजेस्ट होता है. ओके, माउथ, टंग, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियास आर ऑल organs of the digestive system. These all are the organs of our digestive system. Digestion is the process by which food is broken down into simple substances and that the body can use to get energy. Digestion actually में होता क्या है, जो हम खाना खाते हैं वो simple substances में break down होता है, उससे क्या मिलती है, हमें energy मिलती है. That is known as digestion. So this is the picture of digestive system. इसमें हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं. देखते हैं कौन कौन से. फर्स्ट है माउथ. माउथ का काम क्या है, डाइजेशन स्टार्ट इनसाइड द माउथ. द फूड इज च्यूड बाय द टीथ एंड मिक्स्ड विद सलाइवा. जो हमारा खाना जो हम खाते हैं, हम जो च्यू करते हैं उसको अपने माउथ में, वो सलाइवा से मिक्स हो जाता है. ओके, और वो फूड मिक्स होने के बाद कहाँ जाता है, मिक्स होने के बाद वो जाता है हमारी फूड पाइप के थ्रू. फूड पाइप का एक अनदर नेम भी है, दैट इज ईसोफेगस. ओके, द फूड इज स्वेलोड, इट पासेस थ्रू द फूड पाइप. तो खाना हमारे फूड पाइप में जाता है कहाँ से, माउथ, माउथ टू फूड पाइप एंड देन फूड पाइप टू स्टमक. यानी कि हमारे माउथ से इस फूड पाइप में, इसी का दूसरा नाम क्या है, ईसोफेगस. और इसके बाद कहाँ जाता है, हमारे स्टमक में. ओके, इन द स्टमक द फूड मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूसेस. स्टमक में जाने के बाद फूड जो है वो मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ. इट इज ब्रोकन डाउन फर्दर एंड मेड इनटू अ थिक पेस्ट. डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होने के बाद वो एक थिक पेस्ट बनाता है, और उसके बाद दैट पेस्ट goes to the small intestine. Okay, here it mixes with more digestive juices. अब यहाँ पर इस फूड को और ज़्यादा डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं और वह उससे मिक्स हो जाता है. The food breaks down into simple substances called nutrients. और यहाँ पे ही जो फूड हमारा बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, जहाँ से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं. ओके, नाउ द फूड दैट कांट बी डाइजेस्टेड मूव्स टू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो डाइजेस्टेड नहीं, यानी कि जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो कहाँ जाता है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, एंड वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर. यहाँ पर क्या होता है, जो वाटर है वो एब्जॉर्ब किया जाता है. स्टूडेंट्स, ये जो आउटर लाइनिंग दिख रही है आपको, ये हमारी होती है लार्ज इंटेस्टाइन, और जो अंदर दिख रही है आपको, ये होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर. जो हमारे फूड में जो वाटर है वो कौन एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ द वेस्ट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस. जो हमारी बॉडी का वेस्ट फूड है, जो बच जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, दैट इज वेस्ट आउट बाय द एनस. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीदिंग सिस्टम, यानी कि हमारे सांस लेने का सिस्टम. ओके डियर स्टूडेंट्स,
हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन है? नोज, दीज टू आर द नॉस्ट्रल्स, नोज, देन trachea and the lungs. Look at this picture. This is the picture of respiratory system. Okay, this is nose, यहाँ से ये trachea है, sorry this is nose, ये हमारा क्या है? trachea है. इसको हम wind pipe भी बोलते हैं. जैसे ये food pipe का another name esophagus है, ऐसे ही wind pipe का another name है trachea. और जो ये trachea है ये connect होता है हमारे lungs के साथ. These are our lungs. ये connect होता है हमारे lungs के साथ. Okay? The system consists of nose, windpipe and the lungs. Okay? It supplies oxygen to all parts of the body. Respiratory system ही है जो हमारी body को क्या supply करता है? Oxygen. Yes. The oxygen is used to burn the food we eat and gives us the energy to work and play. जो oxygen ही है वो ही यूज किया जाता है फूड को बर्न करने में और जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. When we breathe, the air enters through our nose and travels through the windpipe. When we breathe, जब हम सांस लेते हैं, the air enters through our nose. हमारी जो एयर है वो नोज से एंटर करती है, यहाँ से फिल्टर होकर जाती है हमारे ट्रैकिया में and then trachea to lungs. Okay, so lungs are the spongy bags. इनकी शेप क्या होती है? कॉर्न शेप होती है. कौन सी शेप होती है? कॉर्न शेप होती है. The lungs expand and shrink when we breathe. जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो हमारा lungs क्या होता है? एक्सपैंड होता है और श्रिंक होता है. अगेन एक्सपैंड श्रिंक ये प्रोसेस चलता रहता है. The lungs remove waste carbon dioxide from the blood and purifies the blood. जो lungs है वो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कराते हैं और ब्लड को क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं. The lungs are inside the chest. जो हमारे lungs है वो हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं. Okay? Now we will learn about circulatory system. So, dear students, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है, वन ऑफ द मेन ऑर्गन इज आर हार्ट. हार्ट ही है जो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. हार्ट अलॉन्ग विद द आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स, these all make together our circulatory system. The heart pumps blood to all parts of the body. जो हमारा हार्ट है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. It receives blood containing impurities from different parts of the body through the veins. This blood is purified into the heart and is distributed to all parts of the body through arteries. Now, function क्या होता है हमारी arteries और veins का? I'll tell you. आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज हमारी बॉडीज में हार्ट से ब्लड लेकर जाती हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में और जिस ब्लड में क्या होता है? ऑक्सीजन. यस, दैट ब्लड इज ऑक्सीजन रिच ब्लड. वह उस ब्लड को लेकर जाती हैं आर्टरीज और जो वेन्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड सारे बॉडी पार्ट से वापस कहाँ लाती हैं? हार्ट तक लाती हैं. तो हम कह सकते हैं जो आर्टरीज हैं वो प्योरीफाइड ब्लड लेकर जाती हैं और वेन्स हैं वो इम्प्योरिटीज वाला ब्लड वापस हार्ट तक लाती है. अगेन इट विल बी प्योरीफाई एंड देन दिस प्रोसेस कंटिन्यू. ओके, आवर रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट. अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमारे जो रिब्स हैं उसका फंक्शन क्या है? हमारी रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं हमारे हार्ट को. ओके, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम. The excretory system is made up of 2 kidneys, lungs and skin. All these organs helps to remove waste materials from the body. हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी वजह से ही बॉडी से वेस्ट आउट हो पाता है. Now, the kidneys help to get rid of urine. The lungs helps to get rid of waste carbon dioxide and the skin helps us to remove the sweat through our skin pores.
जो किडनीज हैं वो यूरिन को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो हमारा लंग्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करता है, और जो हमारी स्किन है वो हमारी बॉडी से स्वेट को बाहर रिलीज करती है थ्रू द पोर्स। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट नर्वस सिस्टम. The brain, the spinal cord and the nerves form the nervous system. Brain, spinal cord and nerves. These all make our nervous system. The brain controls all the other parts of the body. As you know that brain is the control center of the body. Brain ही है जो हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. It is the master organ. Who is the master organ? The master organ is our brain. So, the nerves in the body receive signals from the sense organs. जो nerves हैं वो sense organs से signal receive करती हैं and then take messages to the brain. और brain को क्या देती है, वह signal देती है, फिर brain हमारा again signal देता है और work करना start करता है. Okay? The brain has various centers for speaking, writing, memorizing, thinking, fighting and other mental abilities. So, जो brain है वो responsible होता है हमारी पूरी body के work करने में. Okay? Now we will learn about the reproductive system. The organs of this system helps in giving birth to babies. Reproductive system helps to giving birth to babies. Males and females have different types of reproductive organ. Due to this system, life continues from one generation to another. Okay? So, dear students, आज हमने organ systems के बारे में पढ़ा, उनकी functioning के बारे में पढ़ा. I hope आपको पढ़ के समझ आया होगा. So, dear students, आज की हमारी क्लास यहीं एंड होती है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ. Thank you.